Warm welcome to each and every children. Okay, today we are going to learn subject science. In that science subject, we are going to learn chapter 3. I am from Suparitang Municipal English School. Myself, Suni Dongre. Our chapter name is Diversity in Living Thing and their classification. In that, we are going to learn diversity in plants, classification of plants. See, in this picture, you can see different type of trees. Some are tall, some are short plants. Now, one by one, we will learn in detail about diversity in plants. Diversity in plants. Various types of plants are found in many places around us. Some plants like grass are short while others are tall and have a canopy. See, in our surrounding itself, we have seen many variety, many kinds, many types of trees. Some are tall, some are short, thick, flexible. We have seen grasses. Okay. In that grass you have seen long grass, short grass. Okay, and it looks like a canopy means it looks like a shelter. When you see the tree at the top of the tree, it looks like a shelter. You can say it looks like a crown over by a tree or a plant. Some plants grow underwater while some float on water. We find that some plants grow even in a desert. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. For example, there are different variety of rice or wheat, different type of rose and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stem, leaves or roots. They are different from ordinary plants. See, there are some type of plants which do not have a stem, leaves or root. Okay, for about this plant we are going to learn ahead. See here, you have seen many different colors of roses. So in rose itself you have seen different variety of roses. Same it is like for rice. There are basmati rice, small rice, fragrance rice available in the market. So their plants are also different. Let us study this diversity among plants in the next slide. See, here is a diagram, types of plant. The plants are in different types like autotrophic plant, heterotrophic plant and insectivorous plant. Autotrophic plants. Plants make their own food in the sunlight. Such plants are called autotrophic plant. For example, hibiscus, pomegranate, periwinkle. Autotrophic plants grow their own food in the sunlight. Means they produce their own food in sunlight. An example is given, hibiscus. You know very well, shoe flower is known as hibiscus. Pomegranate matlab anar. Periwinkle यानी small pink color का flower. In this flower also you can find different color flower. Now we'll move on to the next, heterotrophic plant. Some plants uses other plants for the food are called heterotrophic plant. For example, loranthus, dodder, funguses, etc. Now this plant take the help of main plant. You can say host plant. यानी ये main plant से अपना न्यूट्रिशन लेती है और फूड ग्रो करती है. They get the nutrition from the main plant and then with the help of that nutrition they grow their own food. An example is here. Now next, insectivorous plant. From the name itself, you can guess that this plant eat insect. Some plant consume insect. Consume यानी insect खाती है. Are called insectivorous plant. Example है pitcher plant. Okay. See now here in this slide you can see the picture of the autotrophic plants, heterotrophic plants and insectivorous plant. See, first is periwinkle, second is hibiscus, pomegranate. In heterotrophic, funguses, loranthus and dodder. See, this is looking like mushroom but it is not eatable mushroom, this is fungus. And here to the right, pitcher plant which is eat insect. Okay. Next. Now structure of plants. As we in our last class we have learned in your 5th standard you have learned about structure of plants, so you have general idea about it. Now in this chapter we are going to learn in deep. Plant structure can generally be divided into two parts. Plant structure is divided into two parts. One, the stem
which grow above the ground and the root under the ground or below the ground. Okay, the stem which grows above the ground and root which grows below the ground. So this way it is divided into two. The root, stem and leaves are the main part of plants. The main part of the plants are root, stem and leaves. Plant bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. So when plant grow, it bear flowers. Bear मतलब पहले फूल आता है, फिर उनका रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, फिर फूल क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है. फ्रूट्स हैव सीड. फिर फ्रूट होने के बाद फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें 1 सीड होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं उसको 2 से 3 से 4 या ज़्यादा भी सीड्स होते हैं. फिर वापस ये अगर हम सीड्स लेते हैं और उसको वापस ग्रो करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन चलता ही जाता है. ओके, now in this slide you will see in detail about the structure of plant, the flower, the stem, the leaf, the fruit and the root. Okay, we will read the flower. This is the most attractive part of plant. It is connected to the stem by a stalk which may be long or short. A flower has a typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. देखो, फ्लावर कलरफुल होते हैं तो वो हमारा अट्रैक्शन खींचते हैं, हमें फ्लावर देखना पसंद आता है. इसीलिए तो बर्थडेज में, किसी के वेडिंग्स में, किसी के कोई भी अच्छे हैप्पी फेस्टिवल्स में या गॉड के सामने बोलो, हम फ्लावर यूज़ करते हैं बिकॉज वो कलरफुल होते हैं. कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ के अंदर फ्रेगनेंस होता है. फ्लावर अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. ओके, और वो कनेक्ट होते हैं स्टेम को. ओके, बाय अ स्टॉक. देखो यहाँ पे दिख रहा है बीच में एक स्टेम खड़ा है, फिर वो जो पतली डंडी है उसे स्टॉक आप कह सकते हैं. वो लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं. अ फ्लावर हैज़ टिपिकल कलर. फ्लावर को अपना एक कलर होता है और वो मेन थिंग होता है, वो मेन मीन्स होता है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी फ्लावर होने के बाद ही वो फ्रूट बनेगा. ओके, रिप्रोडक्शन का जरिया है वो फ्लावर. नेक्स्ट, स्टेम. द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम. प्लांट की हाइट, वेट और साइज डिपेंड होती है स्टेम पे. द स्टेम कैरीज आउट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज फूड. अभी स्टेम का भी एक अपना काम होता है. उसका क्या फंक्शन होता है? प्रोडक्शन करने के लिए मदद होती है, कंडक्शन करने के लिए मदद होती है और स्टोरेज ऑफ द फूड, यानी फूड जमा करने के लिए, फूड आगे बाद में यूज़ होने के लिए वो स्टोर करता है. तो ये सब फंक्शन किसके हैं? स्टेम के. द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, कंडक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन का भी काम करता है स्टेम. इट गिव्स सपोर्ट टू द leaves, you can say. Okay, now we will learn detail about leaf. The leaf is a flat. It play an important role in the production of food. Leaves are mainly of two types, simple and compound leaves. See in the slide below it is given, the picture is given. See, the first is hibiscus, example of simple leaf, means this is a single leaf. And in the second you can see compound leaf of rose. ये रोज़ का लीफ है. देखो एक ही स्टॉक में वो दो दो लीव्स है, बहुत सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, इसलिए उसको कंपाउंड लीव्स बोला है. और वो फ्लैट होता है और वो मोड होता है प्रोडक्शन का. देखो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है. प्लस लीव्स के अंदर शुगर, ग्लूकोज यू कैन से, विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट. ओके, लीव्स के अंदर दो टाइप है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज fruit. Fruit have different shapes. Fruit contain one or more seeds. The pod of beans and the peas are actually fruits. Okay. अभी यहाँ पे बताया गया है फ्रूट के अपने शेप्स होते हैं. यू कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रूट. फ्रूट का फ्लेवर भी डिफरेंट होता है, कोई सार होता है, कोई स्वीट होता है. ओके, और उसके अंदर सीड्स में भी वेरिएशन होते हैं. कोई फ्रूट में 1 सीड होता है, कोई फ्रूट में 2 से ज़्यादा भी होते हैं. ओके, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए, द पॉड ऑफ बीन्स. आपने बीन भी खाया होगा, सब्जी होती है वो, तो वो इटसेल्फ फ्रूट है.
जो बी होती है वो बीन के अंदर वो फ्रूट है। और पी हैव ईटन ग्रीन पी, वो उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। ग्रीन पी के अंदर जो पॉड निकलता है, जो आप बोलते हैं वटाना, वो भी एक फ्रूट है, बट इट इज़ वेजिटेबल फ्रूट, फ्रूट वाला वेजिटेबल। नाउ नेक्स्ट, रूट। The root holds the soil firmly and anchor the plant. Okay, रूट इरेक्ट रखता है, सपोर्ट देता है, पकड़ के रखता है सॉइल के साथ। ओके, द रूट होल्ड्स द सॉइल फर्मली, यानी जो भी सॉइल वाटर जो प्लांट को चाहिए, रूट के थ्रू वो स्टेम तक जाता है, फिर स्टेम के थ्रू वो लीव्स को जाता है, फिर लीव्स के हेल्प से फ्लावर होता है, फ्लावर के हेल्प से फ्रूट होता है। ओके, the main function of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. इसका रूट का मेन फंक्शन वही होता है, न्यूट्रिएंट लेना है सॉइल में से, प्लस वाटर लेना है, और वो आगे ट्रांसपोर्ट करना है, और उसके हेल्प से वो अच्छा प्लांट ग्रोथ होता है। द रूट ऑफ द कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द कैरेट और रेडिश का रूट भी फूड स्टोर करता है। There are two type of roots. There is one, the first one is tap root and the second is fibrous root. Okay, उसका picture next slide में दिया है. Its picture is given in the next slide. See, these are the two type of roots. देखो, फाइब्रस रूट के अंदर बहुत छोटे 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 लगकर पतले पतले टाइनी रूट्स है। ओके, और टैप रूट में एक सिंगल या लॉन्ग है, और फिर एक या दो या तीन है। ओके, यहाँ पे बहुत गुच्छा है। ओके, दिस इज अ बंडल ऑफ टाइनी रूट्स, और यहाँ पे इतने रूट्स नहीं है। ओके, ऑलरेडी यू हैव सीन द टैप रूट इज एग्जाम्पल ऑफ कैरेट, रेडिश, और ये अदर ट्री जैसे हिबिस्कस यू कैन से, मैंगो ट्री यू कैन से, ये सब ट्री के जो रूट होते हैं नीचे से अंडरग्राउंड में ऐसे फैले हुए रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अभी प्लांट का क्लासिफिकेशन क्यों हमको क्लासीफाई करना पड़ा? सी, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। There is a tremendous diversity in the plants on the earth, as we have seen in the second slide. कि बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, उसको अलग कैसे बताएंगे? प्लांट तो सभी है, बट अगर मुझे उस प्लांट को एक्सप्लेन करना है तो उसके अंदर के डिफरेंसेस मुझे बताने पड़ेंगे। सो दिस गिव द राइज टू द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सी, एग्जाम्पल, शेप्स, कलर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स, फ्रेगरेंस, फ्रूट। फ्रेगरेंस मीन्स उसकी सुगंध, स्मेल, फ्रूट एक्सेट्रा। इट इज़ वेरी डाइवर्स, बहुत ही वैरायटी है। देयरफॉर दे शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली इन ग्रुप, इसीलिए उसको ज़रूरत पड़ी कि उसको प्रॉपर ग्रुप में डाला जाए। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स करेक्टली, अगर हमको प्लांट को बराबर से जानना है, उसका डीप हमको स्टडी करना है, तो इनको क्लासीफाई करना बहुत कंपलसरी है। अभी जब बच्चे, आप लोग बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, उसके अंदर भी स्टडीज़ होती है। बॉटनी के अंदर प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स के ऊपर डिटेल स्टडी की जाती है। ओके, और उसके अंदर फ्लावर्स के, ट्री के भी नाम साइंटिफिकली लिए जाते हैं। नाम यही होते हैं, बट दे यूज साइंटिफिक नेम टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी यानी दो ट्री में क्या सिमिलर है, क्या कॉमन है, और डिफरेंसेस यानी ये दो ट्री या प्लांट अलग क्यों है। डिफरेंसेस यानी अलग, इन दोनों में अलग क्या है। सिमिलैरिटी यानी सेम, इन दोनों में सेम क्या है बिटवीन द प्लांट्स। ओके, now here the next sentence is colored sentence because it is important. यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम बताया है। The scientist Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plants. Initially it was his method of classification that was used by all. Okay, the name of the scientist is Carolus Linnaeus. Heard? Scientist Carolus Linnaeus. He was the first scientist to classify the plant. Next, now we'll see indeed criteria for the classification of plant. अभी उन्होंने क्लासीफाई किया, कैसे किया? देखो यहाँ पे 4 मेन कैटेगरी दी है। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, वाइन्स। वाइन्स को सेकेंड नाम है क्रीपर, यू कैन से वाइन्स ऑल्सो एंड क्रीपर ऑल्सो। फर्स्ट वी विल लर्न
trees. Some plants grow tall. Their stems or trunk is hard. यानी कुछ प्लांट ग्रो टॉल होते हैं बहुत हाइट में, उसके स्टेम और ट्रंक भी बहुत हार्ड होते हैं, ओके और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड. उनके ब्रांचेस हाइट पे होते हैं, एकदम लगकर ग्राउंड को नहीं होते. आपने देखा रहेगा ट्री ग्राउंड और वो ब्रांच में बहुत डिस्टेंस होता है. They bear flowers and fruits for many years. Such plants are called trees and trees are tall, big and perennial. देखो ये ट्री बहुत सालों तक रहता है और ऐसे प्लांट को ट्री कहते हैं. और ट्री बिग, टॉल और पेरिनियल होता है. पेरिनियल यानी बहुत सालों तक वो रहता है. दे लिव फॉर मेनी ईयर. वो झाड़ मुरझा नहीं जाता है, सालों साल वो ट्रीज जिंदा रहता है और उसका रिप्रोडक्शन चालू रहता है. ट्रीज आर ऑल्सो ग्रो ओल्ड बाय द टाइम गोज. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड, श्रब्स. सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. यानी ये प्लांट है जो क्लोज होते हैं ग्राउंड को. दे ग्रो गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. यानी अभी वो शॉर्ट होते हैं, जब उनके ब्रांचेस निकलते हैं तो वो शायद ब्रांच और ग्राउंड में डिस्टेंस बहुत कम होता है. दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन द ट्री. श्रब्स ट्री से शॉर्टर है बट स्मॉलर है. ट्री से शॉर्टर है, स्मॉलर है, बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम. दिस प्लांट्स आर शॉर्ट बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम. मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. फॉर एग्जाम्पल द ओलेंडर एंड हिबिस्कस, लंतना एंड कॉरंती एंड रोज आर द श्रब्स दैट मे ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर. ये प्लांट्स की हाइट बताइए 2 से 3 मीटर. 2 to 3 मीटर्स ये हाइट में होते हैं और ग्रो होते हैं. इनके स्टेम थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ओलेंडर, हिबिस्कस, लताना, कॉरंटी एंड रोज. एज यू हैव सीन द रोज प्लांट. रोज प्लांट कैसे होता है, छोटा होता है. रोज प्लांट हम पॉट में भी उगाते हैं, यू हैव सीन, ओके. वो शॉर्ट होता है बट उसकी स्टेम थिक होती है, ओके. Now we will move to the next, herbs. Herbs grow 1 to 1.5 मीटर tall. यानी इनकी हाइट 1 से 1.5 मीटर टॉल होती है. The stem of the herbs are green and quite flexible. इनका जो स्टेम होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. अगर तुम जो ऐसा थोड़ा सा टाइट पकड़ोगे तो वो टूट सकता है. Compared to those of trees and bushes, herbs may live for few months or up to 2 years. हर्ब्स के अंदर आता है पुदीना. आपके घर पे कोरिएंडर आता होगा. कोरिएंडर यानी कोथमीर. हमारे घर पे, सबके घर पे ये हर्ब्स आता ही है, ओके. तो आपने देखा रहेगा वो स्टेम ग्रीन कलर का ये होता है, फ्लेक्सिबल होता है. आप इजीली उसके लीफ स्टॉक से तोड़ सकते हैं, ओके. नेक्स्ट नाउ, वाइन्स एंड क्रीपर. सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग. अभी ये वाइन्स को सपोर्ट की गरज है. हम अब सपोर्ट देंगे तो वो अच्छे से ग्रो होगा. यू कैन मोल्ड द शेप ऑफ द वाइन्स while some others spread on the ground. कुछ वाइन ऐसे होते हैं जो अपने आप स्प्रेड होते हैं, उनको सपोर्ट की गरज नहीं होती. क्लाइंबर्स लाइक अ मनी प्लांट हैव एरियल रूट. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो एरियल रूट होते हैं. आप जिस डायरेक्शन में उसका वाइन घुमाओगे, ओके, उसकी वेल घुमाओगे, वो उस डायरेक्शन में ग्रो होते जाएगा. द स्टेम ऑफ द क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन इन कलर होता है. इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट. अगर हम उसको सपोर्ट देते हैं ना तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, वो ग्रो होते रहता है, ओके. अभी क्रीपर में एक एग्जांपल तो मनी प्लांट बताया है और दूसरा एग्जांपल है आपके वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन. फ्रूट में आपने वाटरमेलन देखा रहेगा, वो वाइन्स होते हैं. ग्रेप्स, उस ग्रेप्स को आपने देखा रहेगा, जो ग्रेप्स का फार्मिंग करते हैं उसको सपोर्ट लगता है, वो सपोर्ट देते हैं स्टिक से तो वो अच्छे से ग्रो होता है, ओके. नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: ट्रीज, shrubs, herbs, and you can also add vines and creeper, okay. Next, see here I have given pictures of the different criteria of plants. Tree के अंदर मैंगो है. shrubs, hibiscus, you know very well about this plant.
हर्ब्स में मिंट आता है, मिंट को हम पुदीना भी कहते हैं। वाइन और क्रीपर के अंदर मनी प्लांट आता है। सी इन दिस मनी प्लांट I have this plant is given support of bamboo, so it is going in that direction. Now next slide. According to the nature, flowering and non-flowering plant. Now we are going to learn about फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या? फ्लावरिंग प्लांट मीन्स प्लांट बेयरिंग फ्लावर्स आर कॉल्ड प्लांट फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो प्लांट फ्लावर बेयर करता है यानी फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। तो वैसे फ्लावरिंग प्लांट आपने बहुत सारे देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस दिया है। ओके, नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट्स दैट नेवर बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग। वो ऐसे पेड़ प्लांट होते हैं जो फ्लावर नहीं उगते हैं उस पर, ऐसे प्लांट को नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और इसके अंदर दिया है सच टाइप ऑफ प्लांट्स मे नॉट हैव रूट स्टेम और लीव्स, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कैक्टस बताया है, कुछ कुछ फंगस होते हैं, कुछ अलगी होते हैं जिसको रूट स्टेम और लीव्स नहीं होता है। अलगी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। नाउ सी प्लांट का कैसे लाइफ साइकिल होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में लाइफ साइकिल होता है, हम पहले बेबी होते हैं, ग्रो होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, वैसे प्लांट्स का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। अभी यहाँ पे कैटेगराइज किया 3 टाइप में, एनुअल, बाइनियल, perennial. First we will learn about annual. Life cycle is completed in 1 year of the crop is known as annual. यानी जो क्रॉप पूरे एक साल लेता है अपने आप को ग्रो करने में, वैसे प्लांट को हम एनुअल प्लांट कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है जोवार एंड सनफ्लावर। ओके, सेकेंड नाउ बाइनियल, लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 years, यानी ये क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको उसकी लाइफ साइकिल यानी वो पूरा ग्रोथ होने के लिए 2 years होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट और बीटरूट, इनके प्लांट की लाइफ साइकिल। पेरिनियल्स, अब ये पेरिनियल मीन्स लिव फॉर सेवरल ईयर, श्रब्स लाइक हिबिस्कस, ओलेंडर एंड ट्री लाइक मैंगो एंड गुलमोहर, यानी दिस टाइप ऑफ प्लांट can live for many years. Okay, that type of plant we can say perennial. 2 years takes to complete is biennial and 1 year takes to complete is annual. Next slide. According to habitat means जिस प्लांट को कौन सा एनवायरनमेंट सूट होता है वो प्लांट वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। So we are going to learn about according to habitat. Habitat in the sense the environment which is suitable to that plant. Now we'll see in detail. Some plants grow on land. Some plants grow in near water or underwater, marshy place and desert. Now we'll see in the land. Plants grow on a land are called, for example, mango and jackfruit. Water, which plant grow in the water? Lotus. Okay, plant grow near water. In this also there are 2 types, submerged and floating. Okay, floating is the lotus plant and algae. Algae you may have seen if you have gone near the river, at the corner of the river, or you can say at the edges of the river or lake, you can find some sticky what you can say grass, huh? Sticky grass, that is known as algae, which don't have a root, stem and leaves also. Okay, that type of grass you can say algae. It is moist and sticky. And lotus, you very much familiar, it floats in the water. Now marshy place means wet ground. For example, mangroves it grows. Okay, and mangroves grow in group. They are not too tall like a trees, they are medium and their stems are strong, but they grow in a groups. Okay, you can say daldal, marshy place yani daldal. Okay, wet ground. Now desert, you are very familiar about desert. Desert is a sand area, and the plant which grow in the desert needs less water. Okay, the plant which need less water to grow, that plant grow in desert. For example is cactus. Next. Thank you student for watching this video.